Okay, so Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone, soaring eagles and non-soaring eagles, our preferred customers and our guests and the team members. I hope you're all well. Let me first quickly introduce myself. I wanted to start dot on time, तो मैंने start कर दिया है. इंशाल्लाह जैसे जैसे लोग join करते रहेंगे, hopefully वो इन sessions का फायदा उठाएंगे. It's not going to be a very long session. I will try to keep it short. Before that, let me introduce myself. अच्छा, ये series जो है, this is digital freedom for 5 days. 5 days में हम क्या करेंगे? I'm going to try to cover everything that you need to know to start this business, or you need to know about this industry, about this company, about our team, and also those people who are already part of Forever, already part of Soaring Eagles. It's going to be like a reset for them. It's going to be a reminder for them, a refresher for them, क्योंकि हम सबको जो है ना, हमारी सोचों को और हमारे काम को और हमारी गोल्स वगैरह को रस्ट लग जाता है, थोड़े से रस्टी हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें ब्लर हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. चाहे वो आपका कल्चर या दीन ही क्यों ना हो, या फिर वो दुनियावी चीज़ें क्यों ना हो, अनलेस वी स्टे कनेक्टेड विद व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नेवर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. हर एक को जो है रिमाइंडर्स की ज़रूरत होती है. So take this training as a reminder for yourself. I'm sure you already know everything that I'm going to share with you today, but I promise you that you are going to leave these sessions with something to think about, food for thought, something to do, a call to action, and you are going to definitely benefit from it. ठीक है? So, before I start a little bit of my introduction, my name is Bushra Numan. As you all know, मैं उन लोगों के लिए जो कि नए हैं और जो मुझे नहीं जानते या जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, I am from Pakistan. Currently, I live in Canada. I'm a software engineer by profession, and I did IT consultancy for a long time. 9 to 5 जॉब में करती थी कोई 9-10 साल, and then I wanted to uh, sit at home, give time to my children, but at the same time I did not want to give up my career, और मैं कुछ करना चाहती थी. That's when I came across this amazing platform, जिसमें मैंने अपना होमवर्क किया, रिसर्च किया, इस तरह के काफ़ी सारे सेशंस देखे, अपना होमवर्क किया, and then I with a very positive mindset and with the willingness to make it work for myself, I jumped into this opportunity, made it work for myself. Allah ka shukar hai, with Allah's help, blessings and guidance, and my hard work, right? जिस तरह आप लोग सब ने किया है, Alhamdulillah. So, and this I have been doing for the past 9.5 years now. This is my 10th working year going on with Forever. तो थोड़ा बहुत experience जो हो गया है, उसके basis पे I'm going to share a few things with you in these 5 sessions. ये जो sessions हैं, ये 5 दिन के होंगे starting today, and we are going to start with something which is very very important. मैं अभी अपनी एक slide share कर देती हूँ. Just yeah. Let me know if you guys can hear me as well as see my screen, right? आप लोग को सबको नजर आ रहा होगा screen भी? Good. ठीक है. So, these 5 sessions are not just for the team, they are for anybody that is interested in knowing about what we do. ये बहुत ज़्यादा लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे. ये 5 दिन की जो ट्रेनिंग है, सेशन है, और हो सकेगा तो मैं एंड में थोड़े क्वेश्चंस भी ले लूँगी, बट आफ्टर 5 days फॉर श्योर वी विल हैव अ क्यूए सेशन एज वेल. फर्स्ट डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद माइंडसेट. थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि आज हम माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे. देन टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ESBI मॉडल, which is the 4 ways of earning money. And then third day will be about why Forever, what is Forever, why should we join Forever, and network marketing. Fourth day will be about completing your 2CC level. Why should we do that? Why should we not just stick to preferred customer level and start our work from there? Why is it very important to complete our first level and start the business properly? And then the fifth and the last day will be about objection handling, which will be equally good for you and for those people whom you are speaking to about this opportunity. तो इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंशाअल्लाह ताला. सो बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे, अपनी नोटबुक्स ले लें. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ योर फोन और आईपैड और लैपटॉप और योर नोटबुक टू नोट डाउन एनीथिंग. किसी का भी किसी वक्त भी कोई एक लाइट बल्ब मोमेंट हो सकता है जो कि उसकी थॉट प्रोसेस को, उसके सक्सेस के अचीवमेंट को जो है वो फैसिलिटेट कर सके और उसको सीखने में आसानी दे सके.
Why do we start from mindset? Sometimes people might think that this is very cheesy, this is very American, ये बहुत ही ये हमारे I mean these are things which are just किताबी बातें होती हैं. And honestly, before I joined Forever, I also used to think the same, कि ये बहुत किताबी बातें होती हैं कि माइंडसेट कर लो और पॉजिटिव थिंकिंग कर लो और गोल बोर्ड बना लो और ये सब कर लो, इनसे कोई फायदा नहीं होता. बट बिलीव यू मी, when I started doing this, it made a world of a change for me, and these things really really do wonders for everybody. तो यहाँ पे यहाँ तक कि इस पे इतनी सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं हमारी नेटवर्क मार्केटिंग पे माइंडसेट के ऊपर, क्या वो पढ़ें तो आप हैरान रह जाएं कि जो हमारा छोटा सा एक माइंड है ना, वो कितना स्ट्रांग है, एंड इट प्लेज अ मेजर मेजर रोल इन एनीबडीज लाइफ एंड देयर सक्सेस एंड देयर फेलियर. ठीक है. सो माइंडसेट से हम शुरू करेंगे. इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर डूइंग फॉर एवर और यू आर डूइंग समथिंग एल्स, यू नीड टू हैव अ माइंडसेट टू स्टार्ट समथिंग. तो डोंट वरी कि आप अभी अगर सिर्फ फॉर एवर में काम कर रहे हैं या सोरिंग ईगल्स में, तो ही आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन एनीथिंग दैट यू स्टार्ट टुडे और टुमारो, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज माइंडसेट, और माइंडसेट का पॉजिटिव होना, माइंडसेट का एक पर्टिकुलर उसके ऊपर लेवल पे आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है टू स्टार्ट एनीथिंग और टू डू एनीथिंग इन लाइफ, राइट? So this is a very amazing quote by Henry Ford, which is very close to my heart. And जैसे कोई कहते हैं ना, जैसे आपको हिट की कोई बात या आपका आपका लाइट बल्ब मोमेंट जो हुआ, वो इस कोटेशन से आप देख सकते हैं कि it will really resonate with a lot of people. It resonated with me. Whether you think you can or you think you can't, you are right. क्या मतलब है कि आपका माइंड, जो आप सोचते हैं अपने बारे में, जो आप विजन करते हैं अपने बारे में, वो जो भी आप सोचेंगे ना, यू आर राइट. यू कैन नॉट बी रॉन्ग अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आपने अपने माइंड में जो सोच लिया कि यू व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, आप उसी काबिल होंगे, राइट? सो जब ये हमारे अपने हाथ में है कि हमें क्या सोचना है और हमें क्या करना है, देन व्हाई नॉट थिंक दैट यू कैन डू इट, so that you can prove yourself right and you can actually achieve it, right? ये किसी भी चीज के लिए वैलिड है. अगर आज आपने सोच लिया कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, तो भी आप सही हैं. और अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं डेफिनेटली मैं ये कर सकती हूँ, तो भी आप सही हैं. If you think that if Bushra can do it, or Shagufta can do it, or Ghazala can do it, or Zamrina can do it, or all the other leaders and all the other FBOs in Forever can do it, then I can as well. Then you will do it, right? But if you start making excuses for yourself, and if you start giving reasons for success for other people, कि उसने तो इसलिए किया क्योंकि दिस दैट एंड दी अदर, मैं इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज दिस दैट एंड दी अदर, तो आप ही अपने आप को हर इन एनी केस ईदर दिस और दैट यू आर गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ राइट. ठीक है. तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. अगर आप समझेंगे कि यू कैन डू इट, 100% यू विल डू इट. अगर आप सोचेंगे ये मैं नहीं कर सकती, 110% you will not do it. All right. So what is mindset? Mindset is basically, अगर हम डिक्शनरी में भी देखें तो समझने की कोशिश करें कि हमारा माइंडसेट है क्या. एक होता है ब्रेन और एक होता है माइंडसेट. ठीक है. ऑफ कोर्स दे आर रिलेटेड. अ सेट ऑफ बिलीव्स और एटीट्यूड्स दैट शेप हाउ यू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड योर सेल्फ. एग्जैक्टली वट आई जस्ट सेड, कि आपका बिलीफ अपने बारे में और आपका बिलीफ चीज़ों के बारे में, जो बिलीफ आप रखेंगे वही आपके लिए ट्रूथ बन जाएगा. It so strongly influences what you feel, how you think, how you behave in any particular situation, right? So it means that what you believe about yourself can impact your results, success or failure. If you think you will be successful, if you believe in your success, you will be successful. If you believe that no, I won't be able to do it, I will fail, you will definitely fail. ठीक है. तो माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इतने ही रिसर्च वगैरह के बाद मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स, जो एक यूनानिमस ओपिनियन अबाउट माइंडसेट इज दैट 80% ऑफ आवर सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन माइंडसेट एंड ओनली 20% इज एफर्ट. ऑब्वियसली एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हाथ पे हाथ रख के बैठने से कभी भी कुछ नहीं अचीव होगा, चाहे आप जितने भी पॉजिटिव हो.
ठीक है, सिर्फ माइंडसेट से नहीं होगा, बट आप एक बैलेंस देखें ना, कि बहुत सारे लोग अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने स्किल्स को, अपनी एफर्ट को समझते हैं कि वही सक्सेस उनको दिलाएगा, राइट? और हम भी यही समझते हैं कि वही उनको सक्सेस दिलाएगा। लेकिन व्हाट वी फेल टू अंडरस्टैंड इज that if you are a negative person, if your mindset is not positive, if your mindset is not a learning positive mindset or a growth mindset, then you won't be able to achieve success at all. 80% आपके सक्सेस का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर माइंडसेट, एंड ओनली 20% इज एफर्ट। दोनों चीज़ों का जब एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो 100% सक्सेस विल बी गारंटीड इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये माइंडसेट को अभी से हमने फॉरएवर के लिए, हमने अपनी काम के लिए ना, जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैं, मुझे उसमें से बहुत सारे पुराने लोग भी नज़र आ रहे हैं, नए लोग भी नज़र आ रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत एक देयर इज़ अ फूड फॉर थॉट इन दिस, कि अपने माइंड को, आज आप बेशक 10 साल से फॉरएवर में हैं, लेकिन आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रहा, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, आप आज भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन रीसेट योर सेल्फ एंड यू कैन थिंक दैट येस आई विल डू इट। So there are so many success stories where I have heard on the stage, people go on the stage and say 10 साल तो ऐसे ही गुजर गए, खेल खेल में हमें समझ ही नहीं आया कि what was in our hands. उसके बाद we realized that this is an amazing opportunity, then I set my mind to it and within a few months I was able to do this, that and the other. ठीक है, तो हमने तो, या आपने तो अभी शुरू किया है, राइट? नो नीड टू गिव अप सो सून, यू डोंट नीड टू गिव अप एट ऑल। या तो आप डिसाइड कर लें अपने लिए कि यू हैव टू डू इट एंड यू विल मेक इट सक्सेसफुल, या फिर आप कह दें कि आई कांट डू इट एंड दैट विल बी द करेक्ट ट्रूथ फॉर यू, कि आप नहीं कर सकेंगे, राइट? सो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरह के माइंडसेट होते हैं। मैं थोड़ी से चार चार पॉइंट्स में आपको इनका डिफरेंस बताऊंगी, एंड देन यू योरसेल्फ, hands on your heart, will decide whether you are a fixed mindset person or you are a growth mindset person. In case you are a fixed mindset person, जो कि 99% of the people होंगे, क्योंकि मैं भी थी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी फिक्स माइंडसेट की थी बिफोर आई स्टार्टेड फॉरएवर, राइट? But if you think after these grading yourself in these 4 categories, अगर आपको लगे कि आप फिक्स माइंडसेट के हैं, तो आपने क्या करना है? You have to make an effort to change yourself to growth mindset. And if alhamdulillah you qualify for all these 4 factors, then you are a growth mindset person. You just continue with whatever you are doing, राइट? फिक्स माइंडसेट वाले लोग, जैसे मैंने कहा, वो कहेंगे या तो मैं कर सकती हूँ या तो मैं नहीं कर सकती, देर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। एंड ग्रोथ माइंडसेट पीपल विल से आई कैन डेवलप माई एबिलिटीज टू डू इट। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये तो इन बॉर्न है, इसके अंदर तो ये स्किल जो है ना बाय बर्थ है, ये तो इन बॉर्न जो है वो बाय बर्थ ये इतना स्किलफुल है, या इसको, इसके अंदर ये क्वालिटी हमेशा से है, इसको तो यू नो क्या कहते हैं, इट जस्ट कम्स नेचुरली टू हर और नेचुरली टू हिम, तो ये तो मतलब कर सकता है या कर सकती है। और चूंकि जहाँ पे लोगों को एफर्ट लगानी पड़ती है थोड़ा सा, वहाँ पे हम लोग समझते हैं और हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, हम उसको थोड़ा लुक डाउन अपॉन करते हैं कि ये बहुत अच्छा, ये बहुत मेहनती है, ये बहुत मेहनत करती है, तो इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं, वो तो ऑलरेडी स्मार्ट है, वो तो वैसे ही। तो वी आर सेल्व्स एज पेरेंट्स ऑल्सो, एज टीचर्स ऑल्सो, हम लोग ये गलत कैटेगराइजेशन करते हैं, क्योंकि मेहनत से आप अपनी एबिलिटीज, अपने स्किल्स और अपनी जो सलाहियतें हैं ना, वो बदल सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स स्मार्ट वर्क एज वेल, बट यू कैन बिकम स्मार्ट, राइट? अगर आपको एक चीज नहीं आती तो यू कैन डेवलप दैट स्किल, यू कैन लर्न इट, राइट? फिक्स माइंडसेट पीपल विल स्टिक टू व्हाट दे नो। जैसे मैं थी पहले, मैं तो जब ये बिजनेस शुरू किया था, मैंने कहा था मैं फेसबुक से हटूंगी नहीं, मैं आई एम कंफर्टेबल विद फेसबुक, प्लीज मुझे उसी पे रहने दो, राइट? बट माई मेंटोर्स, माई colleagues, my team members, they started telling me that if you don't change with time, if you don't come on Instagram or TikTok, you're not going to grow. Even my children started saying that this is obsolete, ये बुढ़ों का platform है शायद, which is wrong, वो उनका अपना opinion है। I still love Facebook and I work on Facebook, but at the same time I started learning Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, labels, everything, right? Growth mindset people will say challenges help me grow. If I don't know Instagram, if I don't know TikTok, it's okay, I will learn it.
आई हैव सो मेनी टूल्स, यूट्यूब है, पॉडकास्ट हैं, बहुत सारी हमारी हमारी अपनी ट्रेनिंग्स हैं. सो व्हाट, I will invest 1 week and I'm going to learn this and I'm going to implement it. So growth mindset people will not stick to what they know. In fact, they will be open to challenges and they will say challenges help me grow. ठीक है, आप अपने आप को इसमें चुपचाप अपने दिल में आइडेंटिफाई करें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. जब से आपने ये बिजनेस शुरू किया है या अभी से आप शुरू कर रहे हैं बिजनेस, आर यू विलिंग टू लर्न व्हाट यू डोंट नो? बिकॉज इफ यू आर विलिंग टू लर्न एंड इफ यू विल लर्न देन यू आर अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन. और आपको मैं अभी बता दूं, माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट डिटर्मिन्स 80% ऑफ योर सक्सेस. अगर आप अपने कंफर्ट जोन, अपने बबल में रहना चाह रहे हैं और वही चीज से सिर्फ काम करना चाह रहे हैं जो आपको आती है, दैट्स गोइंग टू बी 80% ऑफ योर सक्सेस. 20% में अगर आपको थोड़ा सक्सेस उसमें मिल जाता है तो आपकी किस्मत. ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू डू इट, यू हैव टू बी विलिंग टू लर्न, यू नीड टू हैव अ लर्निंग माइंडसेट. राइट. फिक्स माइंडसेट पीपल से आई डोंट लाइक फीडबैक. अगर उनको 2-3 लोग कह देंगे नो, I don't want to do this, they will feel hurt, they will feel discouraged, they will feel looked down upon. वो कहेंगे oh my god, ये क्या हो गया, ये तो दुनिया ही खत्म हो गई, पता नहीं मुझे तो मना कर दिया उन्होंने, मुझे देख के मुझे अनफ्रेंड कर दिया या मुझे देख के रास्ता बदल लिया. They don't like people to judge them, they don't like feedback. Growth mindset people take feedback as constructive. They take it as a challenge. If they're saying no today, no problem. I'm going to make my success make the noise. 10 years down the road, they are going to come to me and, give me the feedback. They are going to come to me and ask me what I do. So feedback, always take it constructive. अगर कोई आपको कोई फीडबैक दे रहा है कि ये ऐसा है या ये वैसा है, take it positively and try to take it as a challenge and improve yourself with it. अगर आपको ये भी फीडबैक मिल रहा है अपने अपलाइन से या अपने साइड लाइन से कि you are being too pushy, you are being very salesy, you are in the face all the time, you are not doing your social media properly, it's a blessing in disguise that there is somebody who's telling you what is not appealing to the eyes. You have to change that. ठीक है. सो ग्रोथ माइंडसेट ऐसा होता है. फिक्स माइंडसेट पीपल क्या कहते हैं, दे गिव अप वेरी वेरी क्विकली. वेरी क्विकली से ये मतलब नहीं है दैट यू शुड एवर गिव अप, यू शुड नेवर गिव अप. बट जो लोग 2-3 दफा के रिजेक्शन के ऊपर गिव अप कर देते हैं या 2-3 साल लगा के कहते हैं ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं ये नहीं कर सकती, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम गिविंग अप, those are fixed mindset people. And growth mindset people say that they are going to work consistently, effort is necessary, I'm going to do everything that is required to do it, if she can do it I can do it as well. राइट. ये मैं आपको थोड़ा आगे एक स्लाइड, बहुत ही एक जबरदस्त स्लाइड है जिसमें मैं बताऊंगी कि किसी के खास कोई पर नहीं लगे हुए होते जिसको सक्सेस मिलता है. एवरीथिंग इज द सेम फॉर एवरीबडी. द ओनली वेरिएबल, द ओनली डिफरेंस इज द पर्सन हु इज रनिंग द शो. राइट. सो हाउ डू यू चेंज योर माइंडसेट? अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि आपने देख लिया, अपने आप को जज कर लिया कि मैं एक फिक्स्ड माइंडसेट पर्सन हूँ. ठीक है. फॉर दोज हु आर ग्रोथ माइंडसेट पीपल, congratulations to you, you are on the right path, you are definitely going to meet success, whether in forever or anywhere else. राइट. दिस इज फॉर एवरीबडी. अगर हम थोड़ी सी भी कोई एक चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं ना, एक छोटा सा भी एक वेंचर शुरू करना चाहते हैं, उसमें अगर हमारा माइंडसेट बिल्कुल सीधा, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, लर्निंग माइंडसेट हो, एक चैलेंजिंग माइंडसेट हो, यू विल डू इट. 3-4 दफ़ा भी फेल होके आप कर लेंगे. इलॉन मस्क जो है, उनका एग्जाम्पल सबको ही पता है कि कितना पूरा पैसा लगा दिया उन्होंने, बैंकरप्ट हो गए, 3 दफ़ा उनका रॉकेट जो है वो बन के फेल हो गया, बट 4th टाइम ही ट्राइड एंड ही वाज एबल टू बी सक्सेसफुल. और उसके बाद जो उनको प्रोजेक्ट्स मिले, उससे वो ऐसे उनके सारे लॉसेस भी पूरे हो गए, वो ऐसे बिलियनियर बने दैट ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट people in the world, right? Because he never gave up. He said, I'm going to try, I'm going to try, I'm going to try again and again and again. Even if I fall, I'm going to try again. So what if I fail? Failure को से डरे नहीं, फेलियर को एक चैलेंज की तरह लें कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा 10 साल भी अगर आपको इस बिजनेस में हो गए ना, यू कैन इवन स्टार्ट नाउ. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव नॉट डन इन द लास्ट 10 years. दैट इज व्हाई I personally feel that I am where I am right now. In 10 years, there are so many people in my industry, in my company, who have gone like way beyond where I am. And I know exactly where I could improve.
सो दिस ईयर आई हैव रीसेट माई गोल्स एज वेल. मैंने भी अपने गोल्स चेंज किए हैं कि दिस इज व्हाट आई नीड टू अचीव एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू डिफरेंटली दिस ईयर टू अचीव द गोल्स दैट आई डिड नॉट सो फार. ठीक है. सो यू कैन, हाउ डू यू चेंज योर माइंडसेट? आप बुक्स पढ़ें. आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने आप से शीशे के सामने खड़े होके आप बार बार री करें, आई एम दी बेस्ट, आई एम सो ब्यूटिफुल, माई स्किन इज ब्यूटिफुल, आई कैन recommend these products because I love them. People will trust me. I can do this. I have every ability to make this work for myself. सेल्फ टॉक जो होती है ना, पॉजिटिव टॉक, वो आप अपने आप से बार बार री करते हैं. सबसे पहले आप, जो मैं आपको कह रही हूँ ना, वो मेरे दो कान पहले सुन रहे हैं, बाद में आप सुन रहे हैं. तो जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है अभी, इट इज नॉट फॉर यू फर्स्ट, इट इज फॉर माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन फॉर यू. जितनी ज्यादा ये पॉजिटिव बातें मैं आपसे करूंगी, उसमें सबसे ज्यादा पहले फायदा मेरा होगा, उसके बाद आपका होगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to start talking, you need to start saying the same things to yourself first, and then to your team members, to your friends, everybody around you, even your children. डे टू डे लाइफ में भी आप एफर्मेशन, स्टिकी नोट्स, विजुअलाइजेशन, बुक्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट, सुबह उठते ही या शाम में बच्चों के साथ कोई एक पॉजिटिव टॉक सुन लें, कोई एक मोटिवेशन. देखिए, मोटिवेशन हम सबको चाहिए, हर स्टेज के ऊपर चाहिए. और मोटिवेशनल स्पीच जब हम सुनते हैं ना, इट डज हैव एन इम्पैक्ट. आप ये नहीं समझें कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूंगा या मैं मोटिवेटेड रहूंगी, आई हैव इनफ मोटिवेशन एंड आई कैन डू. it is never enough. You need to get that motivation. Also, your vibe attracts your tribe. इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं या जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, you are an average of 5 people that you spend your time the most. पिक एंड चूज़ वेरी केयरफुली. ऑब्वियसली हमारी फैमिली मेम्बर्स को तो हम चूज़ नहीं कर सकते ना, लेकिन उनको थोड़ा चेंज कर सकते हैं. अगर कोई बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, उसको चेंज कर सकते हैं. बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर कॉलीग्स, योर टीम मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, योर सोशल सर्कल. जिसके साथ आप 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, यू आर गोइंग टू बी एन एवरेज ऑफ दोज 5 people. Please select them very carefully. If you surround yourself with positive people, you are going to take everything positive from them. Surround yourself with people that uplift your energy. जो लोग आपको energize करें, जो लोग आपको pull down ना करें, जो आपको negativity की तरफ ना ले जाएं, ये तो बेकार है, किन चीज़ों में लग गई हो, तुमने तो ये किया हुआ है, तुमने तो वो किया हुआ है. Just block all those noises around you and be with those people that inspire you, that will pick you up, that will boost your energy. योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. और जब आप एक्चुअली वैसे हो जाएंगे ना, तो आप अपनी तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. राइट. सो व्हेन you've changed your mindset, at least when you are trying to do that, ठीक है, ये एक overnight नहीं होगा. It is going to be an exercise that you will try again and again and again, and eventually you will definitely succeed. लेकिन इसके लिए tools की ज़रूरत होती है हमें. हम बैठे बिठाए डिसाइड नहीं कर सकते कि okay, now from today I'm going to be a growth mindset person. You need tools, you need to listen to podcasts, you need to listen to inspirational stories, you need to surround yourself with positive people, and then you need to decide. एक बहुत में डिसाइड क्या करना है, व्हाट इज योर वाई, व्हाट इज योर गोल. आपने आज फॉरएवर ज्वाइन किया है ना, या आप करने चाह रहे हैं, क्यों? व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स? आपका एक वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट इट शुड मेक यू डू एनीथिंग positive, anything halal, ethical, legal, anything pertaining to your effort, time, energy to achieve that goal. आपका वाई क्या है, वो अभी गोल बोर्ड की बात आएगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि आपने किस तरह उसको विजुलाइज करना है, किस तरह एक विजन बोर्ड बनाना है. बट यू नीड टू डिसाइड what is it that you want from this life. I know as Muslims, जो भी यहाँ अब जिस रिलीजन के भी हैं, मेनली ज़्यादातर मुस्लिम्स अगर हैं, फॉर एग्जांपल, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि हमें पता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा इवेंचुअल गोल क्या है, हमारी मकसद क्या है, वो तो एक प्रायोरिटी है. मैं उसके अलावा बात कर रही हूँ, इस दुनिया में रहने के लिए भी हमें ऑब्वियसली एक अच्छी तरीके से सर्वाइव करना है ना. वी हैव टू लिव अ नाइस लाइफ, वी हैव टू गिव अ नाइस लाइफ टू आवर चिल्ड्रन एंड आवर फैमिली, विच इज़ अल्लाह ताला ने इसका हमें हक दिया है और अलाउड है. तो उसके लिए what is it that you want in this world, it should be very clear to you, and then decide what are you willing to sacrifice for it, what are you willing to exchange for it. आपने अगर वो अपना गोल अचीव करना है, तो आर यू विलिंग टू वर्क 3 hours a day,
4 hours a day, 5 hours a day? What is it that you are willing to give up? क्योंकि वो टाइम आपने निकालना है ना, अपने काम के लिए निकालना है। तो ऐसा तो नहीं था कि उस टाइम के अंदर हम फारिग बैठे हुए थे एक कोने में हाथ पे हाथ रख के। यू हैव टू गिव अप अ फ्यू थिंग्स। विल यू बी वेकिंग अप अर्ली? Will you be sleeping late? Will you be sleeping early? Waking up early so that you can work with a fresh mind in the morning, right? Will you be willing to give up your screen time? ज़्यादा स्क्रोलिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा रील्स नहीं देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारी मूवीज़ नहीं देखेंगे, बिला वजह की पार्टीज़ में नहीं जाएंगे, बिला वजह की सोशलाइजेशन नहीं करेंगे. What are the things that you can exchange if you have made that decision, right? इफ यू से कि नहीं, मैं तो फिर भी 12 घंटे ही सोना है, मैंने तो सोशलाइज भी बहुत करना है, मैंने तो बिल्कुल पार्टी एनिमल बनना है, देन आई एम सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव व्हाट यू want to achieve, right? If you've made a decision that you want to do this and you want to be successful, then you should be willing to compromise, make sacrifices and compromise on some things. वो जो होता है ना कि इसके बदले में आपने exchange करना है. Establish your priorities. I'll tell you something very funny. Even after almost 10 years in this business, अभी सितंबर जब शुरू हो रहा था, सितंबर इज लाइक अ न्यू ईयर फॉर अस मदर्स, राइट? जब आपके बच्चे स्कूल वो समर वेकेशंस होती हैं और फिर वो जब वापस स्कूल जाते हैं ना, तो इट एक्चुअली फील्स लाइक आवर न्यू ईयर हैज आल्सो स्टार्टेड. ठीक है, हमेशा हमेशा सितंबर में मेरा एक रीसेट बटन होता है, क्योंकि समर में कुछ कुछ ना कुछ करके हम बच्चों के साथ बहुत इन्वॉल्व होते हैं ना, हम ट्रैवलिंग भी करते हैं, हम वेकेशंस भी इंजॉय करते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हमारा स्केड्यूल हो जाता है. So when September was starting, I sat down with my husband first, and I told him कि मुझे इस साल जो है ना, I want to achieve this, that, and the other, and for that I need 4 hours at a stretch, any time of the day. मैंने उनके साथ बैठ के अपना पूरा डिस्कशन किया कि this is what I need. You know what happens? My husband also works from home. I also work from home. Sometimes you start taking each other for granted, especially for the females. ऐसा होता है ना कि husband might or anyone else might start taking you for granted that you're always available. अब नाश्ता बना दो तो अब ये कर दो, अब मैं थोड़ा फारिग हो गया हूँ तो अब ये कर लेते हैं काम, तुम तो पर बाद में भी कर लोगी ना. You know that happens. It happened with me a lot of times, and I used to be flexible. I used to be very proud of the fact, oh, my work is very flexible. I can do this, that. मैं जब चाहे available हूँ. Then I made a decision. I sat down with him and I said, I need 4. If I was doing a 9 to 5 job, I would have been out of the house for 8 hours, right? But I'm not doing that. This is very important for me. I need to treat my business with respect so that it gives me the returns that I deserve and that I want. So when children go to school, after that, after doing all the breakfast and everything, I need 4 hours. Let's say 10 a.m. to 2 p.m. I'm working, right? Consider that I'm not at home. Okay. After 2 o'clock, I'm available. I will be doing the lunches. I will be, doing all my other responsibilities. And then obviously, your spouse respects you and everything. If they do, they will listen to you. वो हमारा टाइम वो रीसेट हुआ, हमारी प्रायोरिटीज, and I started from the 1st of September. I have been doing that. And it makes a world of a difference when you decide that this is what you want and what are you willing to exchange for it. आप भी अपने लिए 4 घंटे तो मैं अपना बता रही हूँ, because probably that is how much I need to run a big team, to build another team, to grow, to achieve the incentives that I want to, right? You might have your own goal. You might need that 1 hour, which is fine, राइट लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी के साथ, एक टाइम के साथ. देन अपने बच्चों के साथ बैठी, उनके साथ भी मैंने यही बात की. when they know that it is your time, they're not going to disturb you, right? So you should know, once you've decided, you will find all the people, the resources and ideas you need, and you will get to work. Trust me, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कब काम करना है और आपने कितना काम करना है. Once you've decided that yes, I have a positive mindset, I've taken up this opportunity and I want to make it successful, I will make it successful, this is how much time I'm going to give it. आपने डिसाइड भी कर लिया, then an idea is just a dream unless you write it down, then it becomes a goal. अच्छा, अब अगर आपने वो टाइम भी सेट कर लिया, what are you working for? What are you doing? Why are you working? For that, you need to make your goals
विजुअल, जिसे हम विजन बोर्ड कहते हैं या गोल बोर्ड कहते हैं। अगेन मैं आप लोग को बताऊं, जब मुझे गोल बोर्ड के, मैं आपको किसी दिन अपने गोल बोर्ड्स दिखाऊंगी। अभी मेरा वो कमरा बन रहा है, तो आई रैप्ड अप माय ऑफिस, सो आई work from sometimes from my dining table, sometimes from my these two chairs in my room, तो वो चेंज होता रहता है। बट इन माई ऑफिस आई हैव पुट अप अ गोल बोर्ड एंड एवरीबडी डज दैट। मैंने ये समझा था शुरू में, व्हेन आई स्टार्टेड फॉरएवर, दिस इज अगेन वेरी चीजी, ये गोल बोर्ड क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ऐसी बेकार की चीजें हैं और ये थेरेपीज हैं वगैरह वगैरह, इट डजंट मेक एनी। हम लोग देसी जैसे ही सोचते हैं ना कि दिस इज वेरी अमेरिकन, दिस डजंट हैव एनी, डजंट मेक एनी सेंस। बट बिलीव यू मी, अगेन आई वाज रॉन्ग। दिस गोल बोर्ड proved me wrong, because there is something called law of attraction। जब आप सुबह उठते हैं और जो चीज़ आप सबसे पहले देखेंगे या सबसे ज़्यादा देखेंगे ना दिन में, वो आपको बार बार आपके बैक ऑफ द माइंड पे रहेगी। और जब आप अपना गोल सामने विजुअलाइज कर लेंगे ना, इट विल कीप यू ऑन ट्रैक। नहीं बुशरा, मुझे ये, दिस इज व्हाट माय गोल इज फॉर दिस ईयर, अनदर डे विल पास इफ आई डोंट वर्क टूवर्ड्स दिस गोल। अगर हम उसको सामने विजुअल नहीं बनाएंगे ना, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे कि हाँ कर लेंगे, अभी तो पूरा साल पड़ा है। if that goal is in front of me every single day, that day, every day I will definitely work towards it, वरना मुझे लगेगा कि मैं उसके लिए काम नहीं कर रही, मैं अपना दिन जाया कर रही हूँ। and it could be anything, right? It could be that you want a car, वो आगे आपको पिक्चर्स में भी मैं दिखाऊंगी कि कितना स्पेसिफिक आप कर सकते हैं कि आपके गोल्स, आपका वाई क्या है। आप सबसे पहले अपनी पिक्चर लगाएं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम यू। देन आप उसको सराउंड कर दें विद पॉजिटिव वर्ड्स, दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन डू इट, आई हैव गॉट दिस, आई विल गो फॉर इट, राइट, आई विल अचीव दिस। आप अपनी फीलिंग्स, अपनी अपनी डिज़ायर्स, अपने वांट्स, ऑल हलाल एथिकल जायज़ चीज़ें जो आपको चाहिए, वो आप अपने गोल बोर्ड पे लिख सकती हैं फॉर द ईयर, राइट? और पुट इट इन अ प्रोमिनेंट प्लेस। अगर आप फ्रिज सबसे ज़्यादा खोलती हैं किचन में, फ्रिज पे लगा लें। अगर आप अपनी कबर्ड सबसे ज़्यादा खोलती हैं, वहाँ लगा लें। आप अपने बाथरूम के दरवाजे पे लगा लें, कमरे कमरे के दरवाजे के पीछे लगा लें। इफ़ यू डोंट वांट अदर पीपल टू सी, just put it in a place that at least you see every single day. But when you're making your goal board, make sure that they are smart goals। SMART, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। गोल्स जो है ना, वो एवे नहीं बन जाते कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं एक साल में। हो सकता है कोई बन भी जाए, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू बी रियलिस्टिक, राइट? दे नीड टू बी स्पेसिफिक गोल्स। एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, नैरो इट डाउन। अगर गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की, कौन से मॉडल की, वो कितने की है, ऐसा गोल होगा तो फिर उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग हो सकती है ना। मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकें कि हाँ इतने दिनों में, मैं इतने पैसों में मैं ये गोल अचीव कर सकती हूँ। अचीवेबल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक आई सेड कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम, कोई पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है और वो अभी उसने बिजनेस शुरू किया, वो कोई बहुत ही बड़ा ख्वाब देख रहा है कि मैं किसी किंग बन जाऊं या कुछ। दे शुड बी अचीवेबल, रेलेवेंट, आपकी आपकी वैल्यूज, आपके कल्चर, आपके रिलीजन से रिलेटेड होना चाहिए ऑब्वियसली। आपकी हुदूद में रहता हुआ वो एक एम या गोल होना चाहिए, एंड प्लस इट शुड बी टाइम बेस्ड। हर चीज़ की एक डेडलाइन होती है। अगर आप उसको ओपन एंडेड छोड़ देंगे ना, अगर आपका गोल होगा आई वॉन्ट टू बी अ मैनेजर, राइट, और आप उसके साथ एक डेडलाइन नहीं लगाएंगे, यू विल नेवर अचीव इट इन टाइम। हो सकता है आप अचीव कर लें, लेकिन उसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग जाए, बिकॉज यू विल ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ, मैनेजर बनना है ना, मैंने बनना है, इंशाल्लाह ये मेरा गोल है, मैं बनूंगी। जब तक आप उसमें एक डेडलाइन नहीं लगाएंगे ना, आप उसके लिए अच्छे से काम नहीं कर सकेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ शादी की। शादियां हर घर में होती हैं, हर ख़ानदान में होती हैं। वही शादी किसी की 2 महीने पहले डिसाइड होती है तो 2 महीने में भी हो जाती है। वही शादी किसी की 1 साल पहले डिसाइड होती है, उसी डेट पे तो वो 1 साल में होती है। कुछ लोगों की दिनों हफ्तों में होती है कि उसके पेपर्स आ गए, उसको बाहर जाना है, लेके जाना है, शादी करो, 1 हफ्ते में हो गई। लेकिन शादियां सबकी होती हैं। जब हम एक डेडलाइन अपने आप को दे देते हैं ना, देन वी वर्क टूवर्ड्स इट। हम ये नहीं कहते कि शादी की डेट जो है वो 20th है, तो 21st को जो है ना वो हम जाके वो हॉल बुक कराएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना, उससे पहले ही होता है ना। हॉल बुक भी उससे पहले होता है, मेकअप भी उससे पहले होता है, जहेज भी बनता है, चीज़ें भी होती हैं, कपड़े भी बनते हैं, एवरीथिंग, खाना खाना भी होता है। ऑल द प्लानिंग विल बी डन इन दैट स्पेसिफिक टाइम, इट हैज़ टू बी डन।
उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते। जब डेट डिसाइड हो गई सो हो गई। ऐसा नहीं होता कि वो डेट पास हो गई तो उसके बाद हम उसके लिए कोई काम कर रहे हैं। इसी तरह आपने अपने गोल अचीव करने के लिए उनको टाइम बेस्ड बनाना है। अगर आज सितंबर में आपने डिसाइड किया कि मैं December 2025 तक I have to become manager in forever. Then put that deadline. Manager लिखें, अपनी पिक्चर लगाएं, sash उसके ऊपर आप AI से जनरेट कर लें अपनी पिक्चर that you are wearing a sash of manager. It's in front of you with a timeline December 2025. Then you will work towards it. फिर आप रोजाना उठ के ना there will be butterflies in your stomach that अच्छा मैंने आज इसके लिए क्या काम करना है. You have to make yourself, because in this business, see, there is no boss. आपका कोई बॉस नहीं होगा, which is amazing. Nobody is going to question you. If you want flexibility, you have 100% flexibility. But another thing is that you yourself are your driving force. You are accountable to yourself. आपने हर दिन पिछले दिन से बेहतर बनना है, right? So there is no boss, but you are going to be your boss. So start building up on your dreams. ख्वाब देखना, ड्रीम्स करना बिल्कुल जायज़ है, हमारे इस्लाम में भी है, बल्कि ख्वाबों की ताबीर भी है. सो व्हाई नॉट? if you want a bigger house, if you want to move countries, if you want to take your children on a vacation, if you want to be a big businessman, you want to be a big leader, you want a huge team, you want to get those bonus checks, you want a particular car, then start dreaming about it. Make them visual, put them on your goal boards, then sit down with your upline जिसने आपको इस business में introduce किया है या अभी तक नहीं किया. In the future, you will sit down with them and they will plan out for you how you can achieve that. Right? So for those who have not yet joined this business, I can tell you that जितनी भी चीज़ों की मैं ये बात कर रही हूँ ना, they are very much possible by working with Forever. फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जिसका मैं थर्ड सेशन में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी वाई फॉरएवर, क्यों. ये सब चीज़ें तो आपके माइंडसेट की चीज़ें हो गई ना. अब इसके बाद आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करनी है ये मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगी वाई. ये सब चीज़ें आपको अपना बिजनेस शुरू करने से भी मिल सकती हैं. बाय ऑल मीन्स इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, गो अहेड एंड डू इट. बट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें हम हैं. I'm going to teach you that tomorrow, and then you will, with a broader vision, then you will decide whether you want to do your own thing जिसमें आपने from the scratch सब कुछ करना है, या you want to join network marketing, right? And then third session, why forever. In network marketing सैकड़ों कंपनीज हैं, छोटी बड़ी पुरानी नई सारी, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया. हाउ विल यू डिसाइड विच कंपनी टू ज्वाइन? Because I have been in Forever, I can only tell you about Forever, and I did a lot of research on other companies as well. Not to say anything bad about anything, all companies are good, but Forever से ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ना, मैंने अपनी आँखों से अचीव होते हुए देखी हैं. Right? I have seen people being gifted with the best cars in the world on stage in front of me in Sweden. Right? स्वीडन में जो नंबर 1 था उसको ऑन टॉप ऑफ द बोनस एक गाड़ी भी मिली थी. लोगों को बोनस चेक से वो अपनी पसंद की गाड़ियां भी लेते हैं, घर बनाते हैं, अपनी पसंद की जगह पे बनाते हैं, वेकेशंस ऐसी वेकेशंस पे जाते हैं जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता. राइट? टीम, बड़ी बड़ी टीम, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, लोगों के लाइफ कोचेस बन जाते हैं, बिकॉज दिस इंडस्ट्री विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल हेल्प यू चेंज अदर पीपल्स लाइव्स एज वेल. जिस तरह से अगर मैं भी थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने इससे बहुत ज़्यादा सीखा है, लेकिन अगर मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ, मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे, बट इफ आई एम इन्फ्लुएंसिंग एनी वन सिंगल लाइफ ऑल्सो बाय इन एनी अदर फील्ड ऑल्सो. ज़रूरी नहीं है कि फॉरएवर में ही आप ये माइंडसेट की चीज़ें यूज़ करेंगे. हो सकता है कि यू आर राइट नाउ गोइंग थ्रू अ सर्टेन फेज इन योर लाइफ वे यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट, यू नीड टू हैव अ शिफ्ट. हो सकता है मेरी किसी बात से आपको फर्क पड़ जाए. दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, एंड इट विल बी फॉर यू. when you start learning from this platform, you will start changing lives in a lot of ways. ठीक है? So nothing is impossible because the word impossible itself says I am possible. ये कितनी जबरदस्त सी saying है. I mean, I am is the short form, but again, if you think about it, it is so amazing कि even impossible word के अंदर भी
आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि आई एम पॉसिबल। अगर कोई कह रहा है दिस इज इम्पॉसिबल, यू कैन ब्रेक इट डाउन एंड से आई एम पॉसिबल। ये हमारा जो फॉरएवर का कैलेंडर था ना, उसमें मैंने वन ऑफ द कोटेशंस इज दिस, आई थिंक 6th डे पे आती है या कब, जब भी ये कोटेशन आती है ना, इट रियली हिट्स मी रियली एट द राइट प्लेस, कि नहीं, हर चीज़ पॉसिबल है भाई। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जिसका सोल्यूशन अल्लाह ताला ने ना रखा हो, या जो इंसान के उसमें ना हो। अल्लाह से मांगे और फिर मेहनत करें। और क्या चीज़ है जो इम्पॉसिबल है, स्पेशली इफ़ वी सी द सेम थिंग्स बीइंग अचीव्ड बाय सो मेनी अदर पीपल। जब वो कर सकते हैं तो वो कोई अलग मखलूक थोड़ी है, वो कोई आसमान से थोड़ी आए हैं। दे आर द सेम एज अस, यू एंड मी, नॉर्मल पीपल लाइक you and me, achieving such bigger things without any education also. Sometimes there are people who have no education as well at all. They are coming from a farmer background, they are coming from very different backgrounds, different languages. जो जो एक साल में एक मरीना कार्नेट जो एक साल में जीएलटी बनी थी, शी इज एक्सपेक्टिंग हर 10th चाइल्ड। उसने तो अपना पूरा सोशल मीडिया ही इसके ऊपर बेस किया है। एवरी 2 years उसकी शादी को कितने साल हुए हैं, 18-20 साल हुए हैं सिर्फ, राइट। she is expecting her 10th child. Every 2 years they have a baby, which means एक साल एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही दूसरे का प्रोसेस शुरू हो जाता है, because it takes 1 year for another baby, right? She is beautiful, she has the best skin, she has the best health, mashallah. And her kids जो के सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, they all very well kept, they are all uh, 2-2 साल के गैप से हैं, दे आर स्टडिंग, कोई यूनिवर्सिटी में है, फिर कॉलेजेस में है, फिर मिडिल स्कूल में है, फिर एलिमेंट्री में है, फिर टॉडलर्स हैं और अब न्यू बॉर्न है। एंड शी डजंट हैव एनी हेल्प, शी लिव्स इन, कौन सी कंट्री में है वो, याद नहीं आ रहा मुझे, यूरोप की कोई। एंड शी इज़ वन ऑफ द टॉप एफबीओज इन फॉरएवर. So she has become a big influencer because people, mothers who resonate with her, they follow her and they see that this is also possible. Nothing is impossible. हम 2 या 3 के बाद ही हम लोग कह देते हैं ना, we have our hands full. Oh my God, we have to look at our kids also and home also and cooking as well. And how can we do this business? Then look at people who have more responsibilities than you. Look at people who have lesser resources than you. If they can do it, then we can do it as well, right? So just talking about mindset and making a goal board and thinking, changing your thinking is not going to do anything, although it is 80% of your success. लेकिन without action, without effort, nothing is going to happen. जब तक आप उस पर act upon नहीं करेंगे, obviously कोई आसमान से चीज़ तो गिरेगी नहीं. So जो 20% effort है ना, वो भी obviously it is compulsory. उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. और उसके साथ जो है वो 80% वाला जब माइंडसेट मिक्स होगा, सो यू विल बी एबल टू डू वंडर्स. सो यू हैव टू एक्ट अपॉन इट. एक्ट क्या करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ. व्हाट आर द टूल्स दैट यू हैव इन दिस बिजनेस. इफ यू आर इन अनदर बिजनेस और थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली. आपको जो एक्शन उसके लिए लेना है आप वो लेंगे, लेकिन अगर आप फॉरएवर करना चाहते हैं या फॉरएवर में हैं, उसके हिसाब से आप एक्शन लेंगे. आप सबसे पहले तो ट्रेनिंग्स, व्हाट आर द टूल्स दैट यू हैव trainings. सबसे पहले when you join the business you start taking the trainings. ठीक है, उसमें भी हमने जो 10 days की ट्रेनिंग बनाई है, जब आप ज्वाइन करेंगे ना फॉरएवर, सोरिंग ईगल स्पेशली, फॉरएवर इज अ बिग कंपनी, उसके अंदर बहुत सारी टीम्स हैं. हर टीम का सिखाने का, पढ़ाने का, काम करवाने का, काम करने का तरीका डिफरेंट है. ठीक है, लेकिन दे हैव द सेम मार्केटिंग प्लान, सेम इंडस्ट्री, सेम ओनर्स, सेम का, एवरीथिंग इज द सेम, लेकिन काम करने का तरीका हर एक का डिफरेंट हो सकता है, राइट. सो सोरिंग ईगल्स इज एन इंटरनेशनल टीम जिसमें 21 कंट्रीज के लोग हैं, right? Is not specific to one area or one country or one city. So that is what our team is. We will provide you with a lot of tools that will help you take that action. ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाती हैं trainings. They are all for free. They are available for you in the forms of WhatsApp groups, Facebook team pages, boards app. उसमें 10 days की training ऐसे sequential set हुई हुई है कि even if you don't have any mentor, even if you don't have anybody to take help from, I think that is more than enough for you to start your business, kickstart it and run with it. इतनी आसान है इंग्लिश उर्दू मिक्स में कि आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए.
फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर इज़ लाइक आर मैनुअल। उसकी बुकलेट हमारे बॉक्स में भी होती है, और अगर नहीं है किसी किसी कंट्री के बॉक्स में तो हमारे पास ऑनलाइन डिजिटली भी अवेलेबल है, और उसकी ट्रेनिंग भी। इट्स लाइक अ मैनुअल। जब भी हमारे पास कोई मशीनरी आती है हम उसका मैनुअल देखते हैं ना, उसके बाद उस पर काम शुरू करते हैं। जस्ट लाइक दैट व्हेन यू स्टार्ट फॉरएवर यू हैव अ मैनुअल। Even if you have been in the business for 10 years and you haven't seen that, go back to the basics. You can always restart. Go back to the basics, see what is missing. क्यों नहीं अभी तक आपको सक्सेस मिला? What are the missing pieces in the jigsaw puzzle that you have been doing for the past 10 years, and try to fix that. So start from the basics. दोबारा से 10 days की trainings देखें, फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर बुकलेट को देखें, अपनी एक डायरी बनाएं, उसमें रोज़ाना की टू डू लिस्ट लिखें। डायरी में लिखें या फ़ोन पे लिखें। आई यूजली डू इट ऑन माई फ़ोन। व्हाट आर माई टू डू थिंग्स, थिंग्स टू डू every single day? Talking to 10 new people, following up with old people, following up with clients, doing social media posts, scheduling the posts so that I don't have to do it every single day, right? And reaching out to people, doing the trainings, touching base with my managers, then touching base with my direct team members, then my general, bigger team. So as you grow up the marketing plan, आपकी टीम बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, आपकी टू डू लिस्ट भी बढ़ती है, लेकिन चीज़ें इतनी ऑटोमेट हो जाती हैं कि आसान हो जाती हैं। उसमें यह है कि आपको दिन में 1 2 3 घंटे भी मिले ना, आप फटाफट सारी चीज़ें टिक ऑफ करके, अपनी डायरी बंद करके, लैपटॉप बंद करके, चलो जी, आई एम फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर बिजनेस दैट यू हैव इन योर हैंड। अगर आप उसको सिंक्रोनाइज कर लें, उसको मैनेज कर लें अच्छा सा, तो आप 2 या 3 घंटे में अपना काम ख़त्म करके देन यू कैन बी अवेलेबल फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, राइट? देन यू हैव द हु डू यू नो लिस्ट। ये सारे आपके पास टूल्स हैं विच विल हेल्प यू टेक एक्शन। अगर आपके पास आपका डेटाबेस होगा ना, तो आपको पता होगा इसमें से 10 लोग निकाल के आपने उनसे बात करनी है। अगर आपकी पाइपलाइन फुल होगी, आपके ट्रैकर्स होंगे, जैसे कि व्हाट्सएप का लेबल्स है या ट्रेलो है, आपको पता होगा किसको आज मैंने रीच आउट करना है, किसको फॉलो अप करना है, किसको प्रेजेंटेशन भेज दी थी उससे पूछना है उसने देखी कि नहीं, किसने कहा था प्रेजेंटेशन भेज दूं तो उसको। दिस इज ऑल ऑटोमेटेड इन आवर टीम, राइट? सो व्हेन यू ज्वाइन, आपको ये टूल्स मिलेंगे जिसके थ्रू आपका काम रोज़ाना करना आसान हो जाएगा, राइट? एंड देन यू हैव टू अटेंड ट्रेनिंग्स जो रोज़ाना हो रही हैं, वो अटेंड करने की कोशिश करें। इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम यू कैन कैच अप ऑन रिकॉर्डिंग्स, बट प्लीज़ 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 मेक अ टू डू लिस्ट फॉर एवरी डे। बिकॉज ये आपका जो काम है ना, अगर आप अभी 9 to 5 जॉब कर रही होती तो यू वुड हैव बीन आंसरेबल टू योर बॉस, राइट? यू वुडंट से कि आज मैं थोड़ा बिजी थी तो मैं नहीं आई, आज मुझे थोड़ी छींक आ गई थी तो मैं नहीं आई, आज मैं थक गई थी तो मैं नहीं आई, आज मुझे खाना बनाना था तो मैंने। यू कैन नॉट do that to your boss or your 9 to 5 job. Treat your business like that, even better than that, because this is your business. If you treat it with respect, it will give you the results that you want, right? So make a schedule, make a plan, and do it every single day, right? Last but not the least, I want you guys a little exercise. मुझे चैट में लिख के बताएं कि इस तस्वीर को देख के आपको क्या समझ आ रहा है। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? जो राइट साइड पे एक पिक्चर है ना, आपको क्या इससे समझ आ रहा है? कौन मुझे बताएगा? चैट में मुझे लिख के बताएं। Anything, you can be wrong, it's okay to be wrong, you can be, just say whatever you think. Okay, power lies within us. When you look at yourself, look for your better self. Imagine your better self. Very good, very good. Seeing the good in you, the capability. Amazing. I should realize what I am. Amazing. I can do it. Very well. Very, very, very good. Excellent. सबको पता है. Everybody knows कि what is the power in our mind. Everybody knows, माशाल्लाह. अब इस पिक्चर में ये है, सच अ स्ट्रॉन्ग पिक्चर। जब मैंने इसको देखी थी तो आई जस्ट वांटेड इट टू बी ऑन माय स्लाइड, कि ये एक्चुअली एक बिल्ली है जो अपने आप को जो शीशे में देख रही है, लेकिन जब वो अपने आप को शीशे में देख रही है तो उसको एक लायनेस नजर आ रही है, उसको एक शेरनी नजर आ रही है। दैट इज व्हाट शी थिंक्स शी इज, राइट? बिल्कुल बिल्कुल जमीना शहनाज, इट इज ब्यूटिफुल. सो द कैट, in her mind, she is a lioness.
and if she believes that she is one, she will be one. राइट तो जब आप अपने आप को देखें तो आप वही देखें जो आप देखना चाहते हैं। आप अपने आप को किसी मतलब सिर्फ अपने से एक स्टेप आगे वाले की तरफ ना देखें। आप व्हाई डोंट यू लुक एट द पर्सन हु इज एट द टॉप ऑफ दिस कंपनी फॉर एग्जांपल, उससे कंपेयर करें और कंपेयर एज इन उसको एक स्टैंडर्ड बनाएं। लुक एट योरसेल्फ लाइक दैट पर्सन, दैट आई एम गोइंग टू बी लाइक दैट। राइट सो ये कैट जो है वो जब अपने आप को शीशे में देख रही है तो उसको ये नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट शी वांट्स टू बी, दिस इज हर रियलिटी। एंड देन यस बिल्कुल सना, वी एक्ट द वे वी परसीव आवरसेल्फ। बिल्कुल जैसे वो अपने आप को परसीव कर रही है वो उसी तरह उसका एटीट्यूड, उसका माइंडसेट, वो सब कुछ डिटरमिन करेगा उसका सक्सेस। उसके लुक्स नहीं करेंगे, उसका साइज नहीं करेगा। व्हाट इज हर एटीट्यूड, व्हाट इज हर माइंडसेट, what is her, you know, the aura around her, that will determine her success. So the best thing about this business is कि किसी के साथ भी कोई ज्यादती नहीं होती जिस तरह नॉर्मल कन्वेंशनल बिजनेसेस में होती है ना। हम खुद हैं हमारी सोच, बिल्कुल शगुफ्ता, वेरी 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 वेल सेड। एवरीवन शुड रीड दीज कमेंट्स इन चैट कि सबको ये बात समझ आई है कि हम सब के पास इस बिजनेस में, द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज कि हर एक के पास एक जैसा प्लेटफॉर्म है। सेम इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे पास अलग से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आई है, आपके पास अलग नहीं आई है, या फिर ये जेन लीच के पास अलग नहीं आई है, या नंबर वन इन फॉर एवर जो भी है उसके पास अलग नहीं है। दे हैव द सेम इंडस्ट्री। कंपनी सबके लिए वही है। जो फॉर एवर लिविंग है दैट इज वन कंपनी दैट स्टार्टेड 48 years ago, उसका वही मार्केटिंग प्लान है जो मेरे लिए भी वैलिड है, आपके लिए भी। जिस तरह से मैं मैनेजर बनी हूँ, मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बनी हूँ ना, उसी तरह से आपने भी बनना है। देर इज नथिंग एक्स्ट्रा दैट यू हैव टू डू टू बिकम अ मैनेजर और इवन अ डायमंड मैनेजर। सेम प्रोडक्ट्स सबके लिए वही हैं। जो प्रोडक्ट्स वो लोग सेल करते हैं, जो टॉप अर्नर्स हैं फॉर एवर, वही प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल है सेल करने के लिए। क्लाइंटेल हम सब की वही है। 7.2 billion पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड विच आर ऑन सोशल मीडिया। वही लोग उनको भी मैसर हैं, वही हमें भी। ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि ओह मैं तो पाकिस्तान में बैठी हूँ या कनाडा में, यहाँ तो लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है। हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग बॉर्डरलेस? Who is stopping you from reaching out to people in Africa? Who is stopping you from reaching out to people in India? Who is stopping you from reaching out to people in USA where people have the buying power? This is a borderless plan for you. You can go global with this opportunity. Same products, same company, same industry, same opportunity, सेम एक्सेस टू लर्निंग। हमारे जितने भी पोर्टल्स हैं, फॉर एवर की वेबसाइट ले लें, उसकी ट्रेनिंग्स ले लें, सक्सेस डेज ले लें, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देख लें, अपनी अपनी टीम की ट्रेनिंग्स देख लें, एवरी वन हैज़ एक्सेस टू दैम। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एवरी वन हैज़ 24 hours इन अ डे। कोई ये नहीं कह सकता कि कृष्णा अरोड़ा के पास 36 hours हैं इसलिए वो इतना सक्सेसफुल है। राइट या फिर क्या कहते हैं हमारी एडम में, या फिर जेन लीश, या फिर नैटली हीली, या जो भी बड़े लीडर्स हैं इनके पास जो है वो 48 hours हैं। दैट इज़ वाई दे आर मोर सक्सेसफुल। दे स्लीप ऑल्सो, दे ईट ऑल्सो, they have children also, they cook, they have responsibilities, they also do everything that we do, but in that they have a disciplined lifestyle for business also where they are achieving. हम में से किसी के पास भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, सबके पास एक जितना टाइम है। द ओनली वेरिएबल इज यू और मी, कि इसकी ड्राइविंग फोर्स कौन है, इस अपॉर्चुनिटी की या इस प्लेटफॉर्म की ड्राइविंग फोर्स कौन है। वो दैट इज द वेरिएबल। वो मैं हूँ, आप हैं, या फिर साइमा है, या नादिया है, या शगुफ्ता है, या तबस्सुम है, हु एवर इट इज, दैट इज द डिफरेंस, राइट, विच इज यू एंड मी। सो वी मेक द डिफरेंस। अब हमारे ऊपर है कि हम इसको सक्सेसफुल अपने लिए बनाएं या ना बनाएं। एक कन्वेंशनल बिजनेस होता है ना, या एक कन्वेंशनल कंपनी होती है, उसमें आप फिर भी कह सकते हैं कि सीईओ वही बनेगा जिसकी दिस एंड दिस क्वालिफिकेशन हो, या इतना एक्सपीरियंस हो, या वो बाहर से पढ़ा हुआ हो, या उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, वो सीईओ बनेगा। उसके नीचे वाले जो हैं वो सीनियर मैनेजर्स होंगे, फिर डायरेक्टर्स होंगे, और फिर ये वो जो ऊपर वाला जो है जब रिज़ाइन करेगा तो नीचे वाला ऊपर आएगा वगैरह। बट इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। Everything is the same for everybody. The only variable is you and me, and we have to decide how we make
use of that and how we make it work for ourselves. The greatest discovery of any generation is that human beings can alter their lives by altering the attitudes of their mind, right? कि आप मेहनत से अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं, आप अपने माइंड सेट से अपनी लाइफ्स को चेंज कर सकते हैं. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू डोंट इवन चेंज योर लाइफ अलोन, बट यू कैन चेंज लाइव्स ऑफ सो मैनी अदर पीपल. तो ये एक सवाब का काम भी है, ये एक बहुत इंस्पिरेशनल वर्क भी है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बल्कि बड़ी तेज़ी से ना एक वक्त की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ज़रूरत बनता जा रहा है, बिकॉज एवरी थिंग इज़ नाउ चेंजिंग टू AI, राइट? अभी हमने अगर इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रैब किया तो इट्स गोइंग टू बी टू लेट. हम कल शुरू करें इससे बेहतर हम आज शुरू कर लें, क्योंकि कल को हर चीज़ को तो वैसे ही ऑनलाइन मूव होना ही है. You can see how every profession also is being taken over by AI. कि लोग अब सोच में पड़ जाते हैं कि अपने बच्चों बच्चों को किस करियर की तरफ करें, बिकॉज एवरीथिंग, इवन गाड़ियाँ, ना ना कोई ड्राइवर्स हैं, उबर ड्राइवर्स ख़त्म, पता नहीं क्या क्या कुछ जो है AI ले रहा है, खुद गाड़ियाँ ड्राइव ऑटोमेटिकली खुद ड्राइव कर रही हैं, आप बैठे हैं वो आप उसको अपना डेस्टिनेशन बता दें, दे विल टेक यू देयर. सो ड्राइवरलेस कार्स, राइट? कुकलेस रेस्टोरेंट्स, कोई वेटर्स नहीं है, रोबोट्स हैं हर जगह. इवन अब तो मेडिसिन फील्ड के अंदर जो सर्जरीज हैं बड़ी बड़ी प्रिसिशन के साथ, रोबोट्स आर गोइंग टू डू इट, बिकॉज उसमें ह्यूमन एरर की गुंजाइश नहीं है. इंसान फिर भी गलती कर देता है, लेकिन ऐसे ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो कि बे इंतहा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी कर लेंगे, right? So having said that, it is scary also, but it is also a food for thought कि जो हमारी डिजिटल फ्रीडम है ना वो हम सबको चाहिए. उसके लिए सबसे पहले अपना माइंड बनाएं, माइंडसेट को चेंज करें कि यस आई कैन डू इट, इफ शी कैन डू इट आई कैन डू इट एज वेल. I will change my mindset and I will make it happen for myself, right? So that's it for today. It was all about mindset. Inshallah, tomorrow same time we are going to be talking about the ESBI model. छोटा सा सेशन होगा बट वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. उसमें आई एम गोइंग टू एक मिनट में इसको स्टॉप शेयरिंग कर दूं. आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 4 वेज ऑफ अर्निंग मनी. ये हमें कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता ना. स्कूल में तो हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बल्कि मज़े की बात यह है कि कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाना है एक्सप्लिसिटली. ऑब्वियसली एंड गोल सबका पैसा कमाना ही होता है, लेकिन कभी कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था स्कूल में, हाउ टू अर्न मनी, राइट? विच इज़ द एंड गोल ऑफ एवरी पर्सन. छोटा बड़ा मर्द औरत सबका यही होता है कि हलाल तरीके से पैसा कमाना है. सो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द 4 quadrant formula ESBI model tomorrow, and that will make you understand why network marketing is the business model of the 21st century and why we should join network marketing. ये सब चीज़ें जब आपके जहन में आएंगी ना, जो लोग ऑलरेडी फॉरएवर में हैं, तो उनके लिए लोगों को समझाना कि ये क्यों अच्छा है, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है सिर्फ, इसमें जिसको हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है. दे शुड फील ब्लेस्ड, दे शुड फील कि उनके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, वक्त पे आ गई कि हमने इसको ज्वाइन कर लिया. आज भी जब मैं सोचती हूँ कि 9.5 साल पहले व्हेन आई केम अक्रॉस दिस, थैंक गॉड आई केम अक्रॉस दिस, वरना तो मैं कुछ भी ज्वाइन कर सकती थी ना. ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आई कुड हैव डन एनी अदर थिंग, but the way it came in front of me and I did my homework and research and I joined it, every single day I feel blessed and I'm grateful that I did, alhamdulillah. And I really दिल से चाहती हूँ कि सबके लिए ये ऐसी ही बड़ी blessing हो जैसे कि मेरे लिए रही है और बहुत सारे और लोगों के लिए. All right, take care everyone and have a very nice rest of the day. पूरा घंटा ही हो गया. I wanted it to be shorter, but it's just I become, when I speak about forever and this opportunity, there's no stopping. Thank you very much for bearing with me, and inshallah, I'll see you guys tomorrow, same time with session 2. All right.